ಬೇರ್ಯ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಮಖ್ದೂಮ್ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ಉರುಸ್ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೇ ಹೊಡೆದಾಡುವಂತಹ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲಿಯುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ಫಯಾಜ್ ಎಂಬುವವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಾಗವನ್ನು ದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಜೀಜುಲ್ಲಾ ಅಜ್ಜು ಹೇಳಿದರು. ತಾಲೂಕಿನ ಬೇರ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಮಖ್ದೂಮ್ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಭ ಗಂಧೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೂವಿನ ಚಾದರ್ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಂತರ ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಶಾದಿ ಮಹಲಿನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮನವಿಯಂತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದು ಸಹ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಬಿಜೆಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಮುದಾಯದ ಪರ 24x7 ನಿರಂತರವಾಗಿ 2 ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದಿರುವುದು ಧನ್ಯರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಕಾರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವುದು ನಮ್ಮಗಳ ಆಸೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಗಂಧೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ನೂರಾನಿ ಮಹಫಿಲ್ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಂದರು. ಮುಂದೆ ಯುವ ಸಮೂಹವನ್ನು ಕಮಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ತೀರಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಯುವಕರನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಗಳ್ಳರ ಪಾಲಾಗುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಖಾದರ್ ಲಿಂಗವಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಬರ್ಸ್ತಾನ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಷ್ತಕ್ ಅಫ್ಸರ್ ಮೈಸೂರು, ಯುವ ಮುಖಂಡ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅಜ್ಜು, ಉರುಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾದಿಕ್ ಖಾನ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಮೀರ್ ಪಾಷಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಸೀರ್ ಖಾನ್, ಸೈಯದ್ ಅಶ್ವಕ್, ನವಾಜ್, ಇರ್ಫಾನ್, ಅಫ್ಸರ್, ನಿಷಾದ್, ಅನೀಸ್ ಪಾಷಾ, ಮಹೀಬ್ ಖಾನ್, ಜುನೇದ್ ಬೇಗ್, ಶಿರಾಜ್, ಬಾಸಿದ್, ಈಗ್ ಖಾನ್, ಮಜ್ಜು, ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಮುಜ್ಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. قل هو الله احد الله الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين اللهم على سيدنا شفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق وخذ يدي سهل لنا أشكالنا اللهم يا رحمن يا رحيم لما راكم مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين. باراللہ قرآن مجید اور فرقان حمید میں سے آیات مبارکات کی تلاوت کی گئی ہے. ان کا اجر اور ثواب باراللہ سب سے پہلے آقائی نامدار حضور احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول و مقبول فرما. آپ کے توسل سے جملہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، تمام اولیاء کاملین، بزرگان دین و ملت، ائمہ و مجتہدین، تمام انبیاء، اولیاء، غوث و خواجہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہوئے باراللہ بالخصوص صاحب مزار حضرت سید مخدوم علی شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول و مقبول فرما. باراللہ آج ہم لوگوں نے باراللہ حضرت سید مخدوم شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر باراللہ ہم تمام لوگوں نے خراج عقیدت پیش کی اپنی بارگاہ میں، قبول و مقبول فرما. باراللہ عرس میں جتنے بھی لوگ دامے درمے سخن قدمے حصہ لیے ہیں، مولا ان تمام کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. باراللہ ہمارے اس عرس کی تقریب سعید میں بالخصوص ہمارے عالی جناب عزیز اللہ عرف اجو صاحب چیئرمین وقف بورڈ میسور جو مہمان خصوصی بن کر یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کے ساتھ
آپ کے دیگر اصدقاء دीगर साथी भी हैं मौला, इन तमाम की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। हमारे अजीजुल्लाह साहब उर्फ अज्जू साहब को बारेला दीन दूनी रात चुगनी, हमारे आली जनाब अलहाज अजीजुल्लाह उर्फ अज्जू साहब, माफ कीजिएगा, जो हमारे वक्फ बोर्ड मैसूर के चेयरमैन हैं और बहुत सारे बारेला दीनी खिदमात और हंगामी खिदमात अवामी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। बारेला बहुत सारे मसाजिद मदारिस खानकाहों में और दरबार में बारेला बहुत सारे औकाफ से हासिल करने के बाद बहुत सारे खिदमात बारेला माली खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मस्जिद के लिए भी अहले जमात के लिए बेरिया वालों के लिए शादी महल का इंतखाब किए हैं और बहुत जल्द वो पैसे सैंक्शन होकर आने वाले हैं। बारेला इन सारे खिदमतों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। हमारे अलहाज अजीजुल्लाह उर्फ अज्जू साहब को इन सारे खिदमत बारेला उनका नेमल बदल आलम आखिरत में अता फरमा, बारेला जन्नत में अता फरमा, बारेला दुनिया का और दुनिया में उनको उरूज अता फरमा, बारेला सियासत में बहुत ज्यादा उरूज अता फरमा। आने वाले इलेक्शन में मौला इनको भरपूर कामयाबी अता फरमा। आज हमारे दरमियान वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनकर आए हैं मौला, तो इनको और मजीद तरक्की अता फरमा। MLC बनाकर हमारे बेरिया गांव में बारेला यहाँ बहुत सारे अजला और डिस्ट्रिक्ट का MLC बनाकर मैसूर ही नहीं बल्कि कर्नाटक के मशहूर और मारूफ लीडर बनाकर और MLC बनाकर बारेला इनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा, तरक्की अता फरमा। बारेला और हमारे अज्जू भाई के जो रहबरो रहनुमा हैं, हमारे भी सारी कौमों मिल्लत के कर्नाटक के तमाम कौमों मिल्लत के रहबरो रहनुमा रहबरे आजम कह लिया जाए, हमारे BZ जमीर अहमद साहब, बारेला उनको मजीद तरक्की अता फरमा, सियासत में उरूज अता फरमा। बारेला जिस पोस्ट के वो मुतमन्नी हैं, या अल्लाह उनको भरपूर कामयाबी अता फरमा। उनको जो भी ओहदा मिलने वाला है डिप्टी CM का, मौला उनको जल्द अज जल्दी उसमें कामयाबी अता फरमा, भरपूर कामयाबी अता फरमा। बारेला दुश्मनान को उनको जेर अता फरमा, उनको उरूजी अता फरमा, सियासत में उरूजी अता फरमा। बारेला उनके खिदमात बेशुमार हैं मौला, करोड़ों के जायदाद और करोड़ों के माली इमदाद को वो वहां से बारेला वो हासिल करने के बाद घर घर और गांव गांव करिया करिया और शहर शहर मस्जिद मस्जिद और खान का दरबार दरबार पहुंचाते हैं मौला। इन तमाम खिदमात के बदले में मौला उनको डिप्टी CM के कुर्सी पर फाइज अता फरमा, डिप्टी CM बना दे, मजीद उनको कौम का हमदर्द बना दे बारेला। और साथ साथ हमारे अज्जू भाई और जो हमारे दरमियान खड़े हैं मौला, इनको मजीद सियासत में बारेला वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के अलावा जो भी आला ओहदा है उनको बारेला जल्द से जल्द हासिल करने की तौफीक रफीक अता फरमा। उनको MLC बना दे, मजीद तरक्की अता फरमा दे, कौम का हमदर्द बना दे, हमारे बेरिया और सारे कर्नाटक वालों का हमदर्द बना दे। बारेला इनको सेहत व तवानाई अता फरमा, सेहत में बारेला उनकी रहमतें बरकतें अता फरमा, जानो माल की हिफाजत फरमा, आल औलाद की हिफाजत फरमा, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। बारेला हम सबको एक और नेक बना दे, हम सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर गामदन अता फरमा दे, हम सबको बारेला सच्चा और पक्का औलिया किराम से मोहब्बत करने वाला, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला बना दे। मौला हमारी इस दुआ को साहिब मज़ार हजरत सैयद मखदूम अली शाह कादरी और तमाम अंबिया औलिया गौसो ख्वाजा के सदको तुफैल में कबूल मकबूल फरमा दे। बारेला हमारे मस्जिद कमेटी के जो हजरात हैं, अहले जमात के जो भी मुअज़्ज़ज़ हजरात हैं, बारेला उनको उनकी जो खिदमतें हो रही हैं, मेहनतें हो रही हैं, बारेला उनकी अपनी बारगाह में कबूल फरमा और बारेला उनको मजीद खिदमात अंजाम देने की तौफीक रफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمت حبيبي ونبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. मालूम तुम्हें सब खवाली सुनने आपको इसो हमारा स्पीच होंगे बयान होंगे शाला हारा डालेना वो देखने आपको नहीं तुम्हें खवाली सुनने आपको ही सरकार के दीदार करने आपको इन तुम्हें फिर भी क्या करती ये कमेटी वाले की जिम्मेदारी बनती है जो अन्याय ताउन कर को ही जो हिस्सा ले को ही कमेटी वाले की जिम्मेदारी बनती है उनको दुआ भी करना और उनकी गुलपोशी भी करना। और आज कमेटी वाले हमारे यहाँ के जामिया मस्जिद की कमेटी, खबरस्तान कमेटी पूरे हर साल बेहतरीन प्रोग्राम करते थे। मैं खुश नसीब समझता हूँ कि इतने बेहतरीन दरबार में आपको मुझे भी हाजिरी देने का मौका जो दावत दिया पूरे कमेटी की जानिब कमेटी वाले को
पूरे डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बेहतरीन जगह, बहुत नूरानी महफिल है। अच्छे खवाला भी आ गई हमारे खवाला भी तुमने खवाली सुनाने का रेडी 5 या 10 मिनट में इंशाल्लाह। क्या है बात, एक 2-4-5 दिन पहले आने का मौका मिला। हमारे जामिया मस्जिद की कमेटी के जरा मसले थे, हमारे वहाँ के सदर सेक्रेटरी पूरी कमेटी, हमारे कलीम, हमारे हिंदू पूरे मिल को जो तकाजे वक्फ बोर्ड से रखो इंशाल्लाह। अल्लाह की जात को बुजुर्ग को उम्मीद रखो, जो तुम्हें उम्मीद रखी उससे ज्यादा हमें लोग या खिदमत कर को गाँव को एक शादी माल का बोल कोई इंशाल्लाह। हमारे लीडर मालूम ब्रिजर जमीर अहमद करता उन्होंने क्या बोले तो भी कौम के वास्ते कभी 24 आवर्स कौम की खिदमत के वास्ते रेडी करते हैं। हमें सब कुछ नसीब क्या वैसे बेहतरीन मिनिस्टर हम ना वक्फ बोर्ड माइनॉरिटी हाउसिंग को जो मिल कोई कर्नाटक के अंदर, तुम्हें उनके हक में भी दुआ करो। देखिए परसों बारिश के अंदर 7 जने जो कंपाउंड गिरने के बाद गुजर गए। गवर्नमेंट देने से पहले हर फैमिली को 5-5 लाख रुपए जमीन भी खुद के पैसे में 7 फैमिलियों को दिए। छोटे मोटे जो मारा पड़े थे उनको 1-1 लाख दिए। अल्लाह की तरफ से हमने एक फरिश्ते के थ्रू कर्नाटक के वास्ते एक मिनिस्टर मिल को ही उनके हक में हमें लोग दुआ करना। आइंदा आने वाले दिनों में उन्होंने सभी हमारी तमन्ना उन्होंने सीएम बनना, सीएम नहीं बने तो भी एक बार डिप्टी सीएम बनना को बोले। तुम्हें लोग दुआ करे तो कर्नाटक के नवे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के वास्ते एक फरिश्ते के थ्रू काम करती है। मैं भी जो तुम्हारा शादी माल बना देने का रंदे वक्फ बोर्ड से ग्रैंड ला को देने का रंदे करना कर तो अल्लाह के बाद हमारे भाई सर जमीर अहमद खान साहब को उम्मीद हमें कौन सा भी अच्छा तकाजा मैसूर डिस्ट्रिक्ट से ले लेंगे। तो पहले 4 शादी माला हमना 4 शादी माला सैंक्शन हो गई, मैसूर में भी नहीं था। ये डिस्ट्रिक्ट को 4 अब 5वां ये बोलते मन में दूसरे दिन ही चेक देते मन कर को देंगे कर को बोल कोई बेरिया को मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। एक बेहतरीन शादी माल होता है। यहाँ की कमेटी के जो जिम्मेदार हैं, यहाँ के जो लीडर हैं, हर पार्टी हमने कौन सी भी पार्टी नहीं, हमारी पार्टी हमारा ईमान, हमारी खौफ, हमारा दीन, हमारी पार्टी। बात सियासत का नाम है, पहले हमें सब दीनदार पार्टी अलग अलग हो। इलेक्शन के टाइम पर हर पार्टी वाले मिलकर एक गाँव की और मस्जिद की, कब्रस्तान की, दरबार की, ईदगाह की जो फिक्र कर को कर रही। इसके बाद मैं भी इनके साथ जुड़ को ये गाँव के वास्ते क्या सहूलत होना वो सहूलत ले करने के वास्ते इंशाल्लाह मदद करेंगे। और एक मुबारकबाद गाँव वाले को देता हूँ। तुम्हारे बीच में हमारे बीच में आज की दुनिया में 20-30 की सेट के वास्ते भाया भाया लड़ ले रही, कोर्टा कचेरियां जा रही। वो जमाने में भी अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हमारे फयाजदा के सर के जो मंजी बिल को बोले जामिया मस्जिद को एक मेरी जगह जो है 40 अड़ी 200 अड़ी मैं जामिया मस्जिद को वक्फ बोर्ड को डोनेट करता हूँ। 4 साल से मैं कमेटी वाले को बोल रहा हूँ, नहीं सुन रही। बहुत जने आपको मुझे बहुत राइटा में पूछ रही, 2 करोड़ को पूछ रही, 1.5 करोड़ को पूछ रही। मैं नियत कर को हूँ ये मस्जिद के वास्ते देना कर को बोल को ले लो तुम्हें चेयरमैन साहब कर को बोले। मैं पूरे गाँव की जानिब से वक्फ बोर्ड की जानिब से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर जामिया मस्जिद को इनके हाथ से रजिस्टर करा को बिल, उसके बाद वक्फ बोर्ड को रजिस्टर करा को। इनकी नियत क्या है कर को बोले तो हमें लोग भी कमेटी वाले वादा करी वो जगह जो मैं दे रहा हूँ वहाँ 5 टाइम नमाज चलना कर को 1 से 2 मस्जिद हुए तो बहुत सहूलत होता गाँव में। एक पुराना गाँव, एक नामदार गाँव, तुम्हारा बेरिया का नाम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे कर्नाटक में बेरिया के इतने अच्छे लोग आकर को बोल को क्या के नौजवान जज्बात आकर को बोल को मशहूर है। अल्लाह का घर हो एक बनगा कर को बोले तो इधर के आदमी को नमाज पढ़ने वाले सहूलत होते। मैनेजमेंट एक ही रहता है, एक ही कमेटी रहती है। मस्जिद 1 से 2 हो गया कर को बोले तो नमाजें भी बढ़ती। हमारे नौजवान जियाद नजदीक लगा कर तो आने जाने सफर करने वाले को भी मुसाफिर को भी सहूलत होती है। इंशाल्लाह और बार संदूल तक और एक मस्जिद तुम्हारे बेरिया में बनाना कर को मैं नियत भी करी हूँ। बुजुर्ग के दरबार में बैठ को बातचीत करी। मैं पूरे गाँव की जानिब से हमारे फयाजदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये महंगाई के दिना में अल्लाह के घर के वास्ते ये 2 करोड़ की जगह जो उन्होंने फ्री में दे रही, तुम्हें पूरे इनके हक में सेहत के वास्ते दुआ करो। अल्लाह इसे लोग और ज्यादा पैदा कर को। आज बहुत से जगह देखे रही तुम्हें वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी पकड़े पिड़की अल्लाह के नाम पर जो वक्कर को गए थे, बहुत से जगह हमारे लोग वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी इनके बाबा के प्रॉपर्टियां को पकड़ने को बैठ गई। ये दिना में ऐसे आदमी जो अल्लाह के नाम को वक्त कर रही, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह सबको इसी हिदायत देना की कर को बोले जो है 8.5 एकड़ का कब्रिस्तान ये नहीं रहता तो हमारे बुजुर्ग
नहीं रखो जाते तो हमें कहाँ ले जाको मट्टी करना था, कहाँ ले जाको ऐसे बुजुर्गों का संदोल करना था। अल्लाह जितने भी हमारे बुजुर्ग जिस नियत से वक्कर को जाको हजारों एकड़ अल्लाह उनकी मगफिरत करें दे। आज उन्होंने नहीं रखो जाते थे, महंगाई के जिला में हमें ईदगाह नहीं लेने होता था, जगह खरीद को मस्जिद बनाने नहीं होता था। आइंदा आने वाले नस्ल के वास्ते हमारे बुजुर्ग हजारों एकड़ वक्कर को जा कोई उन्हें रखो जाने में जो बोर्ड है कमेटी आई, मैं भी चेयरमैन बन गो, जमीन में भी मिनिस्टर ही, वो प्रॉपर्टी रहने में ये है सो वो प्रॉपर्टी नहीं रहते तो नहीं रहता था। तुम्हें सब एक हो जाओ, हमें सब मिल को हमारे आइंदा आने वाली नस्ल के वास्ते अच्छे चीजें छोड़ को देंगे। हमारे बुजुर्ग जो वक्कर को जा कोई वो चीजें की हिफाजत के लिए तो वक्त में नया बनाने की जरूरत नहीं है। जो चीजें रखो गई वो चीजें की हमें हिफाजत करने को, उसका बंदोबस्त करने को, उसके डॉक्यूमेंट मजबूत करने को। आइंदा आने वाले हालात तुमने सब मालूम, दिने दिन को कौम के इस्लाम के दुश्मना ज्यादा होते जा रही। हमें ये खोगे तो कौन सी ताकत भी हमने हराने नहीं होता ईमान की ताकत के सामने। हमारे आपस के नायक के पाकियान से आज दूसरे गैर गलत आदमी हमने डराने वाले होंगे। मैं अल्लाह के वास्ते बोलता हूँ तुम्हारा बहुत अच्छा गाँव, एक नामदार गाँव, बहुत दिलदार लोग आया, बहुत नामदार है। तुम्हें सब नौजवानों को अब से तैयार करना, हमें उम्र हो गया बाद क्या करना है तो आइंदा आने वाले मस्जिद कैसा चलाना, कब्रस्तान कैसा चलाना, बुढ़ियों को झड़ जाते रहती तरीके ने भाई सदर होना गति, भाई सेक्रेटरी होना गति, खबर में सेक्रेटरी को भी हुआ, सदर को भी हुआ, मेंबरान को भी हुआ। हमें रहता क्या करना तो सेकेंड पीढ़ी को रेडी करना, नौजवानों को आगे छोड़ को संदोल हमें कैसा करते थे तुम्हें देख लियो बा, हमारे बाद भी तुम्हें करो बागर को बोल को हमें उनको तैयार करना, हर जगह करना है। कर ले कारी मेरे हाथ को जब से वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी जमीर अहमद दी है, हमें 10 से 15 करोड़ लेने का को पहले काम्पाउंड डला रही। हमें क्या करते थे तो बिल्डिंग बड़े बनाते थे, काम्पाउंड नहीं बनाते थे, गैर गलत आदमी हमारी जगह पकड़ लेते थे। मैं सब जगह वो दावत दे रहा हूँ, हमारे जितने भी प्रॉपर्टी आई है मैं पहले काम्पाउंड करना। हमारा दीन वैसा नहीं है, हमें इबादत करना तो वो खरीदना, उसका मोल चुकाना, उसके बाद अल्लाह हमारी इबादत कबूल करता है। किसी की जगह पकड़ लेने की इजाजत रहती तो हमारे जगह हम बहुत बड़े रहते थे, शरीयत और इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। फिर भी हमें लोग या हजारों एकड़ जो हमारे बुजुर्ग वक्कर को जा कोई हमारा तुम्हारा काम नहीं है, लेको देने की जरूरत नहीं, उसकी हिफाजत करना। बुजुर्ग क्या बोलते, उलमाए कराम क्या बोलती, अल्लाह के घर को एक बुजुर्ग के दरबार को मोहब्बत की निगाह से देखना भी सवाब से खाली नहीं है। दीन इतना प्यारा हमारा, हमें नारियल बच्चियां वो सब ले जाने की जरूरत नहीं है, जाते जाते भी सवाब कमा ले जाए। मस्जिद को मोहब्बत की निगाह से देखना भी सवाब। एक आदमी को नमाज को बुला लेके तो एक बंदे को अल्लाह नमाज का उसे भी सवाब देता है, बुला ले जाने वाले को भी अल्लाह सवाब देता है। ऐसा प्यारा इस्लाम, हमें सब एक हो जाएंगे, नेक हो जाती है। हमें एक नहीं होते, एक हो गया तो हमारी कौन सी ताकत भी हम ना हरा नहीं सकती। कहते हुए ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, बेहतरीन खवाला कोई तुम्हें सभी खवाली सुनो। कहते हुए पूरी कमेटी का और इसके मेन हमारे जिम्मेदार मेरे दोस्त मेरे पूरे केसरे में रखो, आगो बेरिया में जम गए तो हम सब केसरे में थे। कलीम हमारे बेहतरीन लीडर सब खड़ कोई हमारे होने वाले अध्यक्ष, मैं बोलता था इनको तुम्हारे सर के नौजवान आगे आना कर को बोल को, ऐसा पूरे नौजवान मिल को तुम्हें ये खो करो। वक्फ बोर्ड से क्या होना इंशाल्लाह करेंगे। मैं हमारे फयाजा की उम्र में बरकत देने देर को दुआ करता हूँ, जो नियत करी वो नियत इन राय तक पूरी होगा। सदर साहब भी पूरे गाँव वाले का नौजवान भूज से खड़ी, आइंदा तुम्हें संभालना सो, खाली क्रिकेट खेलने क्रिकेट नहीं होता, ये भी देखना जरा मस्जिद कैसा हमारे बड़े कैसा करे। नमाज की पाबंदी करना ऐसे हिस्से में कर रही, बहुत तारीफ करते थे कलीम नौजवान ये सब चीजा में बहुत करती है। ये बार क्रिकेट टूर्नामेंट को भी आता हूँ, तो 6 मार को गई हूँ, कौन की कैच पकड़े कौन वो रियान कैच पकड़े ना, हाँ निस के बेटे रियान कैच पकड़े। कहते हुए खवाली शुरू है इंशाल्लाह, वो तो लेना नहीं चाहता। अस्सलाम वालेकुम।